Hello everyone. Can you guys hear me? Okay. Yes, Sultan, we can hear you. Hello everyone. I hope you're doing well and feeling excited for today's session. Thank you for joining us for the Skill of the Month workshop. As today's session is all about helping you speak with confidence, market yourself better, and present your ideas clearly. Whether it's for your class, your job interviews, or building your online presence, we'll also explore how AI and other marketing tools you can use that will help you build a strong, authentic personal brand. We are thrilled to have welcome Mr. Saad Athar Sheikhs, a seasoned communications and policy expert who has worked with the leading organizations like the Asian Development Bank and United Nations, as well as British Council and USAID. So before we begin the session, just a few quick reminders. We will have the Q&A session in the end, so please hold for your question until then. You can drop your question in the chat anytime, and let's keep the space respectful, engaging, and fun for everyone. Okay, all right. Let's get started. Saad, over to you. All right, thank you, Sultan, and welcome everyone. This is me, Sadat Sheikh. I'll just share my slides, and I'll be very, fast and quick in telling you guys how to leverage AI and how to communicate properly. So just hold on with me. It's going to be a very strong session, very quick session, so that you guys can understand how you guys can improve your communication. So I'll be sharing my screen once it's shared. Sultan, just let me know. Sultan, can you see my screen? Yeah, your screen is visible, Saad. All right, guys. So mainly, as you can see, nowadays AI is trending, and everywhere where there's AI has seeped in. Similarly, as far as marketing is concerned or communication is concerned, it has seeped in as well. So today we will be looking at strategic communication when communication is applied at the length of strategic level. Whatever I do with the donors, government of Punjab, government of Pakistan, how we perceive communication there. Then we have marketing in terms of sales and everything for the multinationals and stuff like that. And the last part will focus on how you can improve your uh, public communication and with the help of artificial intelligence that as well. So let's start the session. So a bit of introduction about me, what is my past, what is my present and hopeful future. So I am actually an economic development and policy communication advisor. I have a decade of experience. I have been lucky working with international donor organizations, multilateral banks, government agencies, and multinational corporations. So my core expertise is strategy communication, investment promotion, public policy, uh, complex programs, architecture, strategy development, and gender studies. And I have led many initiatives, many organizations throughout my career. I have been part of USAID, ADB, Timonits, British Council, GIZ, UNFPA, federal government, and the government of Punjab. And I have been very lucky that I have been recognized as national hero by Pakistan Television on 75th Independence Day. And I have been also recognized as Emerging Leader South Asia by Atlas Corps USA, which is a prestigious fellowship. I have been external supervisor to LUMS for last 2 years, from 2021 to 2023. So I have been attached to LUMS, and it's good to be back. Thanks to Sultan and all the career development team in LUMS for having me back. So to start off with, we will have three power trio. One will be the strategic communication, one will be AI in marketing, and third will be mastering public speaking. And I'll be leveraging on my experience. I will be giving you my own experience and my own examples to help you better understand. Now, to start off with, whenever I start my any lecture or any public communication lecture, so the first thing is English is not communication, connection is.
English is not communication, but because true communication isn't about polished accents, perfect grammar, or how fluent you sound. It's about power to connect, to move hearts, to shift minds, and to make someone feel seen, heard, and understood. So basic, I'll be now multilingual. So basic point ये है कि जब भी हम communication के बारे में सोचते हैं और we move around the policy domain or the government, I have been moving around Pakistan quite a lot from last 10 years और मैंने ये बड़ा इशू देखा है हर जगह कि इंग्लिश को ही कम्युनिकेशन समझा जाता है। मैं HEC के साथ PhD फैकल्टी को भी ट्रेन कर रहा हूँ और जो सबसे मेजर इशू हमें हर जगह फैकल्टी को ट्रेन करने में या किसी भी यू नो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को देखने में आता है वो ये है कि कम्युनिकेट करते हुए देयर इज अ मेजर इशू विद इंग्लिश। So to improve your English, the major concern I will again address, communication has nothing to do with English. And after ये जो सारा ट्रेंड चला है AI का जो कि आप आगे देखेंगे भी there will be a lot of tools which I'll be talking about. So English has been sort of it's now a language but obviously उसकी इतनी जरूरत नहीं रही even if you don't have a very good English, you can still communicate perfectly as far as AI, as far as communication is concerned, as far as written communication is concerned. You have tools like ChatGPT, and there are lots of tools which I am going to tell you today, ताकि आपका ये मसला जो है वो बिल्कुल आपका हल हो जाए। So to start off with, something important is strategic communication and why I bring because I am part of all three domains, but I believe strategic communication is the most important aspect. And if you see the image, ये image blur है because strategic communication हमेशा blur lines में चलती है. Now, most of you guys, obviously, after departing from LUMS, most of you will be pursuing consulting organizations like McKinsey, PwC, KPMG. तो आप लोग ये देखेंगे कि वहाँ पे strategic communication की बहुत utilization है. And there is a stat that 80% of crisis failures are due to communication breakdowns, not strategy gaps. McKinsey खुद कह रहा है. स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो है वो एक बेसिकली नैरेटिव बिल्डिंग के लिए एक पर्पसफुल कम्युनिकेशन होती है, चाहे आप एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे अभी आप लम्स में हो। तो आपको एक टोन सेट करने के लिए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको ये समझ आ जाती है कि मेरी मैसेजिंग जो है वो अक्रॉस सेक्टर्स अक्रॉस प्लेटफॉर्म कैसे जाएगी और मुझे डिजायर्ड रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। क्योंकि जब आपकी फ्रेमिंग हो जाती है कम्युनिकेशन की तो फिर आपको स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है और इसके अंदर बहुत सारे जो है एलिमेंट्स आ गए हैं। नाउ मार्केटिंग और कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट फैंसी स्लाइड्स एंड स्टफ लाइक दैट, इट्स नाउ अबाउट केपीआईज कि कौन सा मैसेज है वो कैसे डिलीवर हुआ है, कौन से चैनल से हुआ है, क्या किसी बेहतर चैनल के थ्रू हो सकता था और एडवोकेसी के और कौन से चैनल यूटिलाइज किए जा सकते थे। तो फॉर दैट स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कि आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है क्रॉस प्लेटफॉर्म्स ताकि उसकी ऑप्टिमाइजेशन हो सके। सो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और मार्केटिंग में तो अब ये और भी इंपॉर्टेंट है विद एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया एंड मोर चैनल्स, डेफिनेटली दिस इज द वे फॉरवर्ड। आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज नैरेटिव। चाहे कोई ब्रांड हो, चाहे पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हो, चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, चाहे पॉलिसी कम्युनिकेशन हो, चाहे educational institutes हो जैसे कि आप so narrative matters a lot, whether it's your brand, your marketing, anything. So it's like shaping an identity, and if you see the picture, so there is an image that is trying to be created. Now, why narrative matters? Because it shapes that perception and influence behavior. You see, Pepsi has been boycotted, AFC has been boycotted. There are emerging trends in educational institutes in USA as well, where Harvard, there is a major movement there. So it has to go with a lot of narrative. You end up building strategic narrative. सो बेसिकली उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपका कोर मैसेज स्ट्रांग हो, आपकी आइडेंटिटी जो है वो बड़ी स्ट्रांगली डेवलप हो, आप इमोशनली और कल्चरली ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकें एंड यू मेंटेन
consistency across stakeholders and formats. So you get the key message and then across formats वो चलता जाए. इसके अंदर आपके पास 3 बेसिक एग्जांपल्स हैं जो अभी करंटली आप उससे बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं कि वह नैरेटिव कैसे बिल्ड किया गया. So first of Saad, all is Israel. sorry for interrupting, Saad. Your voice is kind of lagging. Like I just feel like uh, also a student also. So can you hear me now? Am I okay? Yeah, it's quite better now. Yeah. Okay, so there are three narratives जिसमें narrative की बात हो सकती है. First is Israel Gaza conflict, which you guys have seen. Second is Russia-Ukraine war, and third is Indian general election. So we will see how strategic communication and how AI has impacted it. So the first one is Israel-Gaza conflict. Now there is a narrative battle because we are sitting in Pakistan, we are sitting in global south. So there is a certain narrative which we hear, of course. But if you go to West, you travel to USA, you travel to Europe, most of you guys must have been doing or following their BBC or CNN, you will feel that there is a narrative by Israel as well, which says that there were a lot of terrorism, there was a lot of, military operation into their territory, after which they opened up this war. And they are trying to sell this narrative to all the Western major powers. And and at this moment, obviously, in the United Nations or other places, the narrative is being heard. The second one is the global south or the Palestinians, and obviously there is a lot of communication support to the Palestinian from the global south, where obviously the audiences are supporting the genocide which is happening, and we are supporting the building of narrative against Israel. The third, what tools are shaping this narrative? You have social media, you watch reels, you watch TikToks on Gaza, and you contribute to press conferences, influencers who are supporting this cause. और ये जितने भी लोग और या स्टेक होल्डर हैं ये इस नैरेटिव को फैलाने में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं. और अब ग्लोबल साउथ का एक नैरेटिव हो गया और इसराइल का एक नैरेटिव हो गया. कभी वो अब चला जाता है, कभी हमारा नैरेटिव अब चला जाता है. अब इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है मैसिव पोलराइजेशन. जब आप ग्लोबल साउथ से ग्लोबल नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो एक एंटायरली डिफरेंट स्टोरी है. जब आप ग्लोबल साउथ में आते हैं तो नैरेटिव एंटायरली चेंज हो जाता है और आप देखते हैं कि पूरी पूरी पॉपुलेशन जो है वो एक ही नैरेटिव को लेके चल रही है. लेकिन ओवर द टाइम जो जेनोसाइड हो रहा है उसकी प्रॉपर कवरेज और उसको सपोर्ट करने की वजह से और उसका नैरेटिव जाने की वजह से वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है और वो उसी नैरेटिव की वजह से आ रहा है जो थ्रू स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बिल्ड हो रहा है. तो ये आपके पास पहली है जहाँ पे दो डिफरेंट नैरेटिव्स हैं. एक सेल्फ डिफेंस है उनकी तरफ से और एक जेनोसाइड है हमारी तरफ से. The second one is the Russian-Ukraine war. You come to this side, and then there is Russia, and then there is Ukraine. Narrative battle क्या है? Liberation है. Ukraine कहते हैं we are trying to be liberated, and दूसरी तरफ invasion है. जो Russian है कि वो invasion करना चाह रहे हैं. अब यूक्रेन का narrative क्या है कि उन्होंने अपने आप को position किया है that they are democracy under siege, yet they are championing European values, freedom and resilience. रशिया का अगर आप कभी रशियन मीडिया को रिव्यू करें so what they said that this is a special military operation and they are trying to de-nazify Ukraine and because वहाँ पे ethnic Russians के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा so they are trying to highlight that कि रशिया जो है अपनी वॉर को सपोर्ट करने के लिए अपनी पॉपुलेशन से इस नैरेटिव को बिल्ड कर रहा है. नाउ नैरेटिव शेपिंग टूल्स जो है उसके अंदर अगर आप जेलेंस्की की वीडियोस देखें तो डेली वीडियो एड्रेसेस आ रहे हैं, बैटल फील्ड स्टोरी टेलिंग हो रही है. वेस्टर्न मीडिया चूंकि इस मामले में वैसे ही बहुत अच्छा होता है तो वो बहुत सारी चीजें दिखाता है और मीम्स गेम भी बहुत ऑन है. अब इसका रिजल्ट क्या है? यूक्रेन वन ग्लोबल सिंपैथी, वेपन्स एंड फंडिंग थ्रू मास्टरफुल कम्युनिकेशन डिस्पाइट बीइंग मिलिटरी आउटमैच. सो इफ यू सी यूक्रेन वाज नथिंग फॉर रशिया. उससे पहले क्रीमिया पे भी बहुत ज्यादा अटैक हो गया एंड दे गॉट annexed to Russia. Nobody said anything. But this time when it's Ukraine, the president is a former actor, so he knows how to use the narrative power, and he has been doing that well.
and that's why Ukraine is still surviving. The third one is Indian general election. You guys must be, following these elections. And there was a major narrative battle between the Modi's government, Vikas development. He was all focused on development versus democracy under threat. The Indian alliance was actually focused on that the democracy, the values are under threat. Now, Modi's BJP narratives was that it was focused on national pride, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी पंगा लेने की कोशिश की, and then Hindutva and portraying the PM as strong leader who lifted India's global image. So they wanted to show a macho man that India can talk to everybody with eyes in eyes with the global powers. That's what BJP sold to their public. The other one, and if you see their, Twitter and Twitter पे आप देखते हैं तो वो कहते हैं कि वो ये कहते थे कि ये मोदी से पहला वाला इंडिया नहीं है, ये मोदी का इंडिया, and that's what narrative BJP was selling. On the other hand, there was India Alliance who said that there is a lot of authoritarianism and obviously media control because NDTV is taken away. There is democratic institution under siege, and you guys need to change it. इसमें जो शेपिंग टूल्स थे, व्हाट्सएप कैंपेन बीजेपी की बहुत अच्छी थी, एआई डीप फेक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी आप लोगों ने देखा होगा, he was shaping the narrative from outside. And then there were speeches जहाँ पे वो AI को utilize करके regional speeches regional language में कर देते थे. And then there was international opinion editorials as well. Result, despite economic challenges, Modi coalition won a third term, but with the reduced mandate suggesting narrative control wasn't absolute. So if you see, Modi has won it again. Obviously, despite India Alliance thought he will, wash away. He did not. He stood his ground, but his mandate is reduced. So, uska narrative utna strongly hold nahi kar saka. And so on and so forth. If you see the previous Trump election as well, Kamala Harris was always every poll was showing that she was next to Trump. There was a whole narrative by the old media. But what happened was on election day, Trump won decisively. And in 2016 election as well. And they utilized AI for that. They utilized Cambridge Analytica to check the trends. And, they utilize AI in their strategy communication. So, so now I'll tell you about my own two experiences where we utilize strategic communication very nicely. Tefta Punjab rebranding. So I took over Tefta in 2019 as their communication advisor. Before I took over, there was a major problem with the skill sector. Nobody wanted to, get skills. Bada mushkil tha. People were going after degrees, big institution, degree, 4 साल की, 5 साल की, and there was a major problem with hands-on, skill development. So when we took over, we created this whole narrative with influencers coming in and saying that, like Sunny Ali and other Azad Chaiwala, that degrees are not worth it and let's, acquire skill. And in 3 years' time, we rebranded Testa into modern skill digital powerhouse where we, enrollment was just like before it was 90,000 seats. We used to get about 60,000 and applications and obviously all were, enrolled. And after we changed it in the last year, there were, so we enhanced the seats to 200,000. We got about 500,000 seats. And there was a major, change. And in digital programs, it was much more than that. For 1,000 seats, for 1,000 seats, there were more than 100,000 applications. So that was the change to narrative. The second one was USAID investment when I was part of the investment team. So obviously we changed a lot of international, narratives about Pakistan, about there's terrorism, there's, policies are not good for investors. So we created a major campaign. And if you see now, there is mineral conference, there are different conferences happening. Investors are coming in. There were major funding changes as well.
which obviously we can talk about. So that these are two where we utilize strategic communication along with AI to change the narrative. And about skill set, you guys can talk to each other and see. 4 years back, 5 years back, Digi was important. Today, even Digi is important. But with that, acquiring new skills has also taken shape. And now we have Lums X. In 5 years' time, Lums X has come up, obviously with providing new skills. So that's the kind of change we have brought. Uh, now, the AI revolution in communication. So it is so much that 58% of US adults use voice assistants now. So before that, I do remember that we used to give voice commands to Google. At times, it did not used to pick up. Now there is a major change in the market, and we believe because I have a firm as well which sell the chatbots. There is 1.34 billion market for chatbots. Where previously people used to respond themselves. Now they have chatbots. All the big companies have chatbots. Even in Pakistan, it's now new normal. Now there are a lot of chatbots, virtual assistant, human AI conversation. You have bots managing FAQs, troubleshoot, and now they can sense emotional tone as well. We have certain things where we apply that, and there is a sensitivity around the communication. And now there is a major Gartner is a major publication, and it says that by 2027 we will have chatbots who will be the primary customer service channel. So all the customer services, you have a lot of call centers in Pakistan, you have a lot of customer service job. All these will be managed, and it will be remotely managed by chatbots. I get 20 leads for chatbots every day from abroad. Telling us to build chatbots. So this whole thing is going, it's going to be obsolete. This whole job is going to be obsolete. Then you have AI transforming marketing. Now this is very important. Before that, when I started off, we had traditional methods of marketing, and we brought social media, and we thought that was the game changer. But 5 years, 7 years down the line, now I feel that social media even has become redundant. Digital media has become redundant in terms of marketing, because obviously there are new tools where 76% of marketers say AI is essential for digital marketing success. AI personalizes content based on real-time user data. AI ad targeting can improve click-through rate by up to 50%. So I get everyday applications where there is a specific target audience and कि ये वाला customer चाहिए sir, उसी ये emotional tone होनी चाहिए, and we build chatbots targeting that customer. So there is greater ROI now due to AI, and it's more or less AI versus AI now because others have chatbots as well. Uh, AI in sales and lead generation, customer communication transformation. So customer has transformed this communication transformation, and by 2027, things will be entirely different. And there is a major, sales generation is through, AI. And you have intelligence marketing, you have Salesforce, you have different software where you can generate. So when we started off with email marketing 6, 7 years back, we used to buy purchase data from through Bitcoin and stuff like that. And now it's entirely different. Now we have tools where we get search engine into it. और वो हमें सारे हर किस्म के कस्टमर का डाटा कलेक्ट कर देते हैं, एंड वी ईमेल देम, एंड 95% रेट आ जाता है उसका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने का. सो दैट इज द काइंड ऑफ चेंज एआई हैज ब्रॉट. AI for real time customer conversion उसके लिए भी यूटिलाइज हो रहा है. So पहले क्या होता था, लीड जनरेशन हुई, हमने कस्टमर से बात की, हमने उसको कन्वर्ट किया, अब वो भी ऑटोमेट हो गया. एंड देयर टाइम्स जहाँ पे कस्टमर को 95% हमारे चैटबॉट्स या डिफरेंट टूल्स जो हैं उसको चेंज कर देते हैं. अब McKinsey also says that AI can increase e-commerce conversion by up to 35%. So कस्टमर के जितने कंसर्न होते हैं वो जितना अच्छा AI एड्रेस कर सकता है, obviously that is not equal at par with human, but it's very helpful now. And
obviously, for marketing, so there's a growing trend. You must have heard about it. In Pakistan, there is a lot of vlogging, but if you go to West, the new trend is the faceless YouTube channels, where we have, we get every day a lot of leads कि आप हमें channel बना दें, and what without camera, there are AI generated videos, AI scripting, content niches trending में आ जाती हैं, and we focus on that, and that makes a lot of money. So it's also faceless at all, and also it's managed by AI. So if you see, AI has changed all marketing. You have Salesforce, you have SEMrush, you have different tools जिससे वो सारा चीज ऑटोमेट हो रही है. एंड पहले आपको एक अपनी स्किल चाहिए होती थी सेल्स जनरेट करने की. Now you need a lot of tools to get the customer base. इंस्टेंट कम्युनिकेशन गेम्स जो है वो भी रियल टाइम एआई जब एक्शन में आती है तो हो जाते हैं. इसके अंदर ये है कि हमारी मीटिंग्स वगैरह, इंटरव्यूज, नोट टेकिंग सब उठा लिया जाता है. Google Translate. So when I travel to Azerbaijan or other countries where language is a problem, which I said earlier, and this is why I emphasize on this slide, English used to be a very important tool beforehand. But अब ऐसा कोई मसला नहीं. You have the tools. इंग्लिश को ट्रांसलेट कर देते हैं, एंड देन ऑब्वियसली आप जो है वो उसको आगे यानी फौरी तौर पे उसका रिस्पॉन्ड कर देते हैं, और एआई के थ्रू यू कैन रिस्पॉन्ड इट एज वेल. And sales, AI is accelerating the sales cycle to predictive lead scoring and automated follow-up. अच्छा, उससे भी चूंकि वो एक प्रेडिक्टेड साइकिल पे चलता है कि अगर मैं इस बंदे को ये जवाब दूंगा तो ये मुझे सेल दे देगा, तो उससे भी सेल बहुत बेहतर होती जा रही है. और जिन्होंने अब एआई सेल्स यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें अब 50% उनको ग्रोथ फील हो रही है. नाउ द थर्ड पार्ट, बिकॉज अब आपकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन भी सेट हो गई, आपने कौन सा नैरेटिव लेके चलना है अपनी कंपनी के अंदर, अपनी गवर्नमेंट या पॉलिसी या अपने इंस्टीट्यूट के अंदर. एंड नाउ यू नो द सेल्स हाउ टू सेल एज वेल. नाउ कमिंग टू द पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टेज फ्राइट, which is a basic thing when it comes to communication. अगर आपके पास ये तीनों चीजें बेस्ट हो जाएं, तो obviously you can succeed in any form of life. अब जो टेक्निकल से पर्सन हैं, दे आर नॉट टेक्निकल एज वेल, दे हैव टू स्पीक एज वेल, दे हैव टू डू सेल्स एज वेल, कम्युनिकेट एज वेल. और जो गवर्नमेंट में भी है, दे हैव टू डू सेम, एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैव स्टूडेंट हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. नाउ पब्लिक फ्राइट जो है, द फियर फैक्टर व्हाई पब्लिक स्पीकिंग इज स्टिल इंटिमिडेटिंग, इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारी रीजन है. यू हैव एंजाइटी, स्वेटिंग, स्टेज फ्राइट, and it is said that Camden University कहती है कि 75% of public people fear public speaking more than that. And हम सारे किसी न किसी टाइम पे इस सारे मसले से गुजर चुके हैं. If it's me, it's Sultan, it's everyone, इन्होंने कभी ना कभी इसको ओवरकम किया. Now before, इसी वजह से कैरियर स्टैग्नेशन भी हो जाती है. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में आप बात नहीं कर सकते. आपकी आपको जजमेंट की फियर है, लैक ऑफ प्रिपरेशन है, पास्ट एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं है, तो फिर वो बड़ा इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है. एंड दैट्स वेयर आई कम इन टू टेल यू गाइस कि अब ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं रहा. विद एआई टूल्स रीशेपिंग पब्लिक स्पीकिंग, जिन लोगों ने एआई स्पीच ट्रेनर्स को के टूल्स के तहत इसको बेहतर किया है, तो क्योंकि 23% इंक्रीज है प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस में 3 हफ्तों के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली वो आपकी स्पीच सुनता है, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कराता है, आपकी थ्रो को देखता है, आप किस तरह से बात करें, उस सब चीज को देखता है, और उससे आपकी इंप्रूवमेंट होती है. जो पहले होता था, आप किसी ट्यूटर के पास जाते थे, एट टाइम्स आप फिर भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, आपको पहले इमोशनली कनेक्ट करना पड़ता था. बट नाउ आपके पास एक मोबाइल है जिसके थ्रू आप इन गलतियों पे उसको ठीक कर सकते हैं. मैं अब भी बहुत सारी चीजों को पहले सुन के, एंड देन आई अंडरस्टैंड दैट थ्रू एआई, एंड देन ऑब्वियसली मैं उसको बेहतर कर लेता हूँ. और रिटर्न में भी यही आ गया कि यू राइट समथिंग एंड यू गेट इट चेक with some AI tool, and then you publish it. So there are speech coaches like Yudi or I that analyze the tone, pace, because at times when a person is
उसको थोड़ा सा स्टेज फ्राइट होता है, तो वो उसकी स्पीड तेज हो जाती है, सो उसको पेस को ठीक करता है, आई कांटेक्ट कितना है, और वो साथ ही इंस्टेंट फीडबैक देता है। अब वर्चुअल रियलिटी एआई सिमुलेटर्स भी आ गए हैं, वेयर यू हैव रियलिस्टिक स्टेज, और आपको ऐसे फील होता है यू आर स्पीकिंग टू एन ऑडियंस, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बेहतर होता जाता है, एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, वेरी चीप। And then obviously there are chat GPT वगैरह to set your writing. पहले लोग बड़ी अजीब से इंग्लिश लिखते थे, अब यानी आपसे आसानी से पढ़ी जाती है, एंड ये फिर आपको अनेबल करता है सेफली अपने फियर्स को ओवरकम करने के लिए। सो थैंक गॉड वी आर सिटिंग इन अ डेकेड where these tools are available. When I was kid, these things were not available, and it was a mess. Now, what to do to come to the last part? क्या किया जाए, to master public speaking with AI support? So, from fear to fluency, your AI-assisted game plan. Practice with AI coaches. I would suggest rather than human, start with AI coaches. वो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे और आपको ठीक करेंगे। आप यूडी और आई यूज कर सकते हैं, रिहर्सल्स कर सकते हैं, इसको बेहतर करने के लिए मिमिक कर सकते हैं, और आपको लगेगा एक रियल ऑडियंस बैठी है और आपकी एंजाइटी आहिस्ता आहिस्ता दूर होगी। चैट जीपीटी वैसे तो हर बंदा ही आजकल कर लेता है, बट उसको प्रॉपर नैरेटिव में लाने के लिए ऑब्वियसली यू नीड प्रॉपर स्किल सेट, कि आप अपनी बेहतर लगे, जो कि लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बट यू हैव टू एडिट इट प्रॉपरली, एंड देन ऑब्वियसली उससे आपकी स्पीच वगैरह बेहतर हो जाएगी, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, तो आपके लिए देना स्पीच आसान होगी। एंड उसके बाद मॉनिटर इंप्रूवमेंट्स इन वॉइस मॉड्यूलेशन, पेसिंग एंड फिल्टर वर्ड्स रिडक्शन ओवर टाइम. Use AI transcription tool to review your practice sections, identify gaps and refine delivery. तो इस तरह करके डिफरेंट टूल्स के साथ आप ओवर द टाइम जब प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो यू विल गेट बेटर, और फिर वहां से आप कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप और बेहतर होते रहेंगे। AI doesn't replace your voice; it helps you find it. And it's not about just communication. I have learned a lot of stuff about chatbots and everything I want to learn. Maybe it's guitar or something. I do it through AI. So that's why I feel this is not an issue as well. Now this and ethics in AI communication. So my जितनी भी मैं स्लाइड्स या कम्युनिकेट करता हूँ, उसके अंदर मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है, क्योंकि मैंने 4-5 साल डिफरेंट रोबोटिक्स बनाए भी हैं, उनको यूटिलाइज भी किया है, और प्रोटोटाइप्स बनाए हैं एआई के काफी रोबोटिक फॉर्म में, जहाँ वो ह्यूमन राइट फॉर्म में आए हैं। एंड what I would suggest is there are ethical issues, there are risk in AI. इसमें जो प्रॉब्लम है, डाटा सेट्स बहुत सारे हैं, उसमें हल्की वो सारे इट्स इजियर टू हैक देम, आपकी इंफॉर्मेशन सारी ऑनलाइन पड़ी है, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज विद दैट। 81% अमेरिकन आर नाउ वरीड अबाउट इट, जो उनका तो सारा सिस्टम ही ऑनलाइन है, तो ऑब्वियसली वहाँ बड़ा मसला है। और 72% फियर मैनिपुलेशन, मिसइंफॉर्मेशन, AI ड्रिवन सोशल मीडिया कंटेंट, आजकल डीप फेक्स और इन सारी चीजों का बड़ा मसला हो गया है। आपको ये मसला तो ऑब्वियसली अपनी असाइनमेंट्स में भी आता होगा, या अपनी डेली कम्युनिकेशन में भी आता होगा, इफ यू राइट वेरी नाइस, तो वो सारे फॉर्म भी AI बेस्ड है, सो इट्स वेरी हार्ड टू identify which is real and which is fake. And there is a delusional reality that ChatGPT users are having difficulty adjusting to reality. अभी एक और एक रिपोर्ट भी आई है कि जब वो फिर अब ChatGPT और बाकी AI टूल से बातें करते रहते हैं, तो वो रियलिटी से दूर हो जाते हैं। सो delusions as well. बिकॉज आजकल बहुत सारे लोग, जैसे हमारे पास व्हाट्सएप के अंदर एक मी का सेक्शन होता था, जिसके अंदर आप सारी अपनी चीजें लिख लेते थे, आजकल लोग चैट जीपीटी से बातें करके अपने मसले भी हल करते हैं, जिसकी वजह से वो वही रिस्पॉन्स देता है जो आपकी मेंटल हेल्थ के साथ टोन अप हो जाता है। तो फिर आप इतना स्टक बंद हो जाते हैं अपने उस शेल के अंदर कि इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि बाहर क्या चल रहा है। एंड आई गिव यू माय पर्सनल एग्जांपल that I had argument with my wife, and she when
शी सेड कि मैं जो भी आपके साथ आर्ग्यूमेंट होती है मैं अपने चैट जीपीटी पे लिख लेती हूँ कि मेरा गलती है कि आपकी. And मैंने then I showed her because obviously I am in this field. I do communication and AI. तो मैंने उसको फौरी तौर पे कहा कि राइट इन माय चैट जीपीटी एंड शी सेड कि ये डिफरेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है मेरी चैट जीपीटी से. तो ऑब्वियसली बिकॉज वो इतना टोन अप हो रही है कि फिर वो आपको वही रिस्पॉन्स देता है जो आप सुनना चाहते हैं. एंड आप फेसबुक पे भी ये देखेंगे कि आप जो चीज रील देखते हैं ऑब्वियसली अगली फिर वैसे ही आती है. तो वो इतना टेलर हो जाता है कि वो फिर आपके लिए रियलिटी और उसका करना फर्क मुश्किल हो जाता है एंड यू हैव अदर इश्यूज एज वेल. तो ये भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आते हैं, सेल्स में भी आते हैं, इकोनॉमिक्स में भी आते हैं, स्ट्रेटेजिक नैरेटिव्स में भी ये हमारा आजकल सबसे बड़ा चैलेंज है. तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. लेट्स हैव योर क्वेश्चंस प्लीज. एंड मैंने अपनी तरफ से तीनों डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं उनको बता दिए. आज आप जाने के बाद ये लेक्चर दोबारा भी देख सकते हैं यूएसए कंटेंट में. अब आपको स्टेज फ्राइट से निकलने का भी तरीका पता चल गया है, एआई के रिस्क का भी आइडिया हो गया है, और साथ ही साथ हम गवर्नमेंट में बैठ के कैसे नैरेटिव को सेट करते हैं और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में, और हम जब हार्ड को मल्टीनेशनल में जाते हैं तो उनकी सेल्स को कैसे बेहतर करते हैं. तो यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, टूल्स तक अंदर लिख दिए गए हैं. एंड आई होप यू हैड अ गुड सेशन. And you need to keep it crisp. I could have, taken it out for a very long time, but आजकल attention span बहुत कम हो रही है. So you have to be quick about it. Thank you all from my side. Thank you so much, Sir. This was really an informative session by you. Guys, you can send your questions in the chat box, and we will take it one by one. So Abdul Majid wants to say something. Yeah, go ahead, Abdul Majid. I just unmuted you. Yeah, sure. Thank you so much. All right, so sir, I just wanted to ask that you just mentioned the incorporation of AI tools in all of the communication tactics and communication strategies and presentation skills. So all these things which were initially being taught by humans, and we had like communication strategy पढ़ाने वाले लोग. Does that mean कि उनकी need will be wiped off out of the market very soon? Okay. First of all, that's a very good question. Okay. So it's like riding a tiger. AI, because I was a communication specialist, and I knew AI a bit before it came, as a mainstream thing to Pakistan, because I was sitting at such a position. Uh, what happens is कि जब आप अगर तो AI से पहले आप चीजें नहीं सीखेंगे और तो उसको अपने फायदे के लिए यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप रिडंडेंट हो जाएंगे. क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पहले जाएं तो जब आईटी नई नई आई थी तो प्रॉब्लम्स इसी तरह के थे. द वन हु न्यू आईटी वेंट फार अहेड देन दोज हु डिडंट. हाँ, वो भी बिल्कुल ऑफ नहीं हुए, बट ऑब्वियसली उनकी जगह कम हो गई. अब जो बेसिकली कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं या जितने भी कंसल्टिंग एजेंसीज हैं, अगर आपने यूके न्यूज़पेपर्स देखे हो तो मैकेंजी और तीन चार जो बड़ी हैं ईवाई वगैरह, इन्होंने अपना 40% स्टाफ निकाल दिए बिकॉज वो सारी चीजें एआई अब उनको कर देता है. अब बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एनालिटिक एरियाज आ गए हैं जहां पे फिर कंसल्टेंट की जरूरत होती है. बिकॉज आई एम अ कंसल्टेंट माई सेल्फ. हमारा छोटे मोटे काम तो अब पाकिस्तान के अंदर भी वो जॉब्स और वो सारे इश्यूज निकल गए हैं. स्टाफ खुद ही वो एआई के थ्रू कर लेता है, और जहाँ पे सेल्स को यानी जो वर्क फोर्स है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है तो वहां ज्यादा हो गया. टीचर्स मुझे नहीं लगता रिप्लेस होंगे, बट टीचर्स का रोल अगर वो अप टू द मार्क नहीं करते. सो फॉर इंस्टेंस आई टीच फॉर एचईसी टू फैकल्टी. Now, if I don't know these tools, and let's say you have seen my lecture, you go to your class, and your digital marketing teacher is not teaching you about
Salesforce or other things about lead generation, तो obviously आपके लिए tough हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगा and after some time वो replace हो जाएगा. So it's just कि लोगों की यूटिलाइजेशन भी कम होती जा रही है. अगर आप उस टाइगर को राइड कर लेते हैं तो यू आर इन अ बेटर पोजिशन एज द टाइगर ईट्स यू. दैट्स द थिंग एंड ऑब्वियसली इट्स टफ फॉर द न्यूअर लॉ टू कम बिकॉज जो आप 50-60 साल का बाबा भी है, ही इज ट्राइंग टू लर्न मोर थिंग्स एंड उसका स्पैन भी ज्यादा हो गया है. तो फिर आप प्रोफेशनल्स के लिए आने के लिए भी मसला हो गया. So these are the challenges we are facing. It's interesting times. I hope I answered the question well. Okay, so Isa wanted to like ask something, like he hand raised. So Isa, I'm unmuting you if you want to ask. You can hand raise again, Isa. Okay, I just unmuted you, Isa. So I had a similar question to whoever asked the question before me कि AI अब हर चीज़ में यूज़ हो रहा है, हर चीज़ में यूज़ हो रहा है. तो आई नो कंटेंट क्रिएशन में इस्तेमाल हो रहा है, हमारे जो एड्स बनते हैं उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, एड्स के अंदर जो फोटोग्राफिक एड्स हैं उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो वीडियोस बनती हैं उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि एविटार्स भी आ गए जो कि एड्स बनाते हैं, बल्कि एविटार के थ्रू बनाते हैं. फेसलेस भी होता है, फेस के साथ भी होता है. बहरहाल तो अब हर चीज़ के अंदर AI यूज़ हो रहा है. तो विल AI replace us? I don't think I think ये इसमें भी मेरा ख्याल है कि at times ये ना कम्युनिकेशन के हवाले से बहुत बड़ी बात है कि पब्लिक इवेंट्स पे हमारे जो टेक गुरुज हैं वो ये कह देते हैं कि AI रिप्लेस कर देगा. I don't think so. There are people who are doing some wonderful job एंड उन्होंने AI को अपना टूल बना लिया है. देखें टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट पे टेक्नोलॉजी आएगी, यूजर को वही है, स्टैग्नेशन हो जाएगी. बट स्टिल SEO में मैंने ये फील किया है, यस ChatGPT बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है बट उसका ह्यूमनाइजिंग फैक्टर उतना ज्यादा नहीं है जो कि एक आम आदमी जो अच्छा SEO राइटर है, जो कंटेंट लिखता है और ऑप्टिमाइज करता है, तो उसका लेवल और ही होता है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी मेजर स्टेटमेंट के AI बिल्कुल ही रिप्लेस कर देगी. आई डोंट थिंक सो. हाँ, आपको आपके पास जो बंदा रह जाएगा उसका स्किल सेट बहुत अच्छा हो जाएगा और बाकियों को ज्यादा हेल्प स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बट आप उनके पास टूल्स भी उतने ही ज्यादा है. बट आई डोंट थिंक सो कि AI हमें रिप्लेस करेगा. दैट्स अ मेजर, ये जस्ट एक इट्स जस्ट अ थ्योरी. आई डोंट बिलीव दैट. Okay, so another question. Iman just hand raised her, so let me just unmute you. Okay, Iman, you can ask your question. Hello. First, I'd like to say great session. What I wanted to ask exactly was that so basically, Ajkal there is a lot of focus on automation in a way that you get things done in like the fastest way possible. At the same time, these days there's also a focus on authenticity as well. So my question is, कि how can one exactly strike a balance between using AI for messaging and maintaining that authenticity in their personal the narratives? And what are some like common mistakes young people usually do make when using these AI tools? Because personally, what I've seen is that a lot of people are fully dependent on it. Thank you so much, Iman, and it's a great question. There are two things, and that's what I wanted to come on, and thanks for this question. So yeah, आपको हमेशा ये देखना है कि आपको टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं हो जाना. प्रॉब्लम क्या आ रही है? The guys who used to write very good English don't are not dependent on ChatGPT a lot, but the guys who यानी जिनकी इंग्लिश उस लेवल की नहीं थी वो बहुत ज्यादा ChatGPT पे यानी उसकी बिल्कुल जो वो कहता है वही कर लेते हैं. प्रॉब्लम ये आ गया है नई जनरेशन में और ओल्ड अलाइक कि बहुत ज्यादा जब ये टेक्नोलॉजी आप तक काम करती रहती है. व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग ChatGPT तो हर प्रपोजल में ChatGPT से ही निकालता जा रहा था और आफ्टर मुझे सम टाइम फील हुआ कि मैं इस पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया हूँ कि जब मुझे कोई ईमेल लिखनी पड़ी तो मुझे आधा घंटा समझ ही नहीं आई, हालांकि मेरा तो सारी जिंदगी काम ही ये था.
for the government and other partners to write high level reports, and it was very hard for me as well, and it's for everyone. आई थिंक स्ट्राइकिंग योर बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप इतने टूल्स यूज करें इट मेक्स यू डम। मैं वो बता सकता हूँ जो मैं करता हूँ। सो सेल्स के अंदर पहले मैं कम्युनिकेशन के वाले से बता देता हूँ। फॉर नैरेटिव मैं ये करता हूँ कि आई गो टू जनरल पब्लिक। चैट जीपीटी मुझे 6 आइडियाज दे देता है, दूसरे टूल्स भी दे देते हैं, कैम्ब्रिज एनालिटिका है वो मुझे एनालिटिक्स दे देती। मैं हमेशा जाता हूँ और मैं जाके उसमें से कुछ एरियाज पिक करता हूँ और मैं जनरल पब्लिक को थ्रो करके वहां से एक इंसाइट लेता हूँ टू गेट क्लोजर टू द रियलिटी। एंड फिर वही एरियाज में जाके वही सॉल्यूशंस प्रपोज करता हूँ जो कि होते हैं, बिकॉज और उसका फिर मुझे एआई असिस्ट करता है। हाँ, जहां तक ईमेल लिखने की बात है, जहां तक नॉर्मल है, वॉइस असिस्टेंट्स चाहिए, दैट या लेट्स से मीटिंग है उसकी रिकॉर्डिंग के लिए टूल चाहिए, तो दैट आई डू बिकॉज आई थिंक दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। सो ये जो नॉर्मल टाइम है, काम है, ये ऑब्वियसली आई गिव इट टू यू नो द AI to do it. For example, इस मीटिंग के इस सेशन के मिनट्स निकालने हैं, दैट इज समथिंग जो कि मुझे लगता है कि ये एआई भी कर ले तो कोई मसला नहीं। मेजर पॉइंट्स अभी मैं खुद हाथ से रिकॉर्डिंग करके ट्रांसक्रिप्टिंग के लिए मैं खुद मेजर पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ये मेजर पॉइंट्स है, ये दफा पढ़ता हूँ, रिव्यू मैं खुद अपने पास करता हूँ। सेकेंड, इसी तरह आप आ जाते हैं मल्टीनेशनल पे, सेल्स फोर्स या बाकी आपके टूल्स हैं या एससीओ है, तो फॉर दैट एज वेल मैं स्ट्रेटेजी खुद बनाता हूँ। आई डोंट टेक एनी हेल्प फ्रॉम एआई। हाँ, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, डाटा को ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू यूज SEMrush, कीवर्ड रिसर्च, वो करके उसको एनालाइज अगेन रिव्यू में अपने पास रखा हूँ, और उसको अपने क्रॉस चेक करता हूँ। एंड द थर्ड, अब जो पब्लिक स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग में ऑब्वियसली मुझे इतनी जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली देयर आर एरियाज जहाँ पे मुझे फिर पब्लिक स्पीकिंग के लिए कुछ एआई टूल्स की सपोर्ट चाहिए होती है। बट आई स्टिल आई obviously I'm 33 but still old school in that sense that I trust on my instincts more. Sales में of course, because I have been doing sales for 15 years now, sales में आपकी इंस्टिंक्ट बड़ी मैटर करती है। मैं अभी अपनी कन्वर्जन के लिए, मैं डाटा के लिए एआई को यूटिलाइज कर लेता हूँ, कन्वर्जन जो सेल्स की है, कस्टमर के साथ डीलिंग है, वो मैं खुद करता हूँ। तो ये आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। इसी तरह जो इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है, मैं उसको 4-6 जगह से क्रॉस वेरीफाई करता हूँ, बिकॉज आजकल बहुत डीप फेक इंफॉर्मेशन आ रही है, और जो हमारी ओल्ड गार्ड है उनके पास तो व्हाट्सएप मैसेजेस में इतनी एआई इंफॉर्मेशन आ जाती है कि, और अब तो वीडियोस भी आ जाती हैं जो वो कहते हैं यही हो रही है। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी हार्ड टू get hold of the reality, but I crossed it from 3-4 areas before commenting into it. Okay, so Mohammuddin Uzair wants to ask some question. I just unmuted you on Uzair. Okay, so sir, I have a question regarding AI automation, like how to sell AI automations. I'm interacting with a number of people on subreddits, automation की जो है, उसमें Zapier और Initen से लोग processes और workflows तो बना लेते हैं automate करने के लिए, लेकिन Reddit पे ये लग रहा होता है कि it's just a hype, जितने लोगों ने ये चीजें सीख ली हैं, लेकिन उतने लोग sell नहीं कर पा रहे। मे बी इट इज बिकॉज के वो उनकी सेल्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते, जो वर्क फ्लो ऑटोमेशन होती हैं वो, कि ऑटोमेटिकली आपका जो भी लीड जनरेट हो रही है वो गूगल डॉक के अंदर आ रही है, आप उसको ईमेल्स भेज रहे हो, तो वो उनकी सेल्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती। तो शायद कंपनीज वन टाइम उसके लिए पेमेंट करती हैं या परमानेंटली पेमेंट नहीं करती, लेकिन सेल्स वाली साइड के अंदर जो ऑटोमेशन आ रही हैं वो हाईली पेड है, क्योंकि शायद कंपनीज को लगता है कि वो उनके लिए सेल्स जनरेट कर रही हैं, और जो प्रोसेस ऑटोमेशन है वो उनको डायरेक्टली नजर नहीं आता कि उनके लिए जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कर रही है। तो बेसिकली अगर आप प्रोसेस ऑटोमेशन सीख रहे हो तो आप उसको सेल ऑटोमेशन वाली साइड पे कैसे लेके जाओगे, ताकि आप सेल भी एआई के थ्रू कर सको। अगर आप सेल ट्रेडिशनल वे में कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप सेल नहीं कर सकोगे अपने प्रोसेस ऑटोमेशन को। तो इसके बारे में आप कुछ टूल्स वगैरह बता सकते हैं जिसमें जो सेल्स में हेल्प कर सकें? जी, thank you, Abdul. Thank you, Uzair. Again, a very good question. As I said to Iman as well, प्रॉब्लम ये आ रहा है, और ये मेरे साथ कल आती हुआ है। यहाँ पे जो पाकिस्तान में रिसोर्सेज, वैसे तो एआई चैटबॉट के अभी भी मुझे लगता है बहुत कम है, हम अभी भी वेबसाइटें बेचने पे फोकस कर रहे हैं।
और एसईओ का भी बुरा हाल है। आई एम फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, आई कैन टेल यू कि अभी हम उसकी टूल डेवलपमेंट और उस सारी चीजों में उसकी यूटिलाइजेशन में बहुत पीछे है। देयर इज अ ट्रेडिशनल वे, कुछ चीजों में ट्रेडिशनल वे है, और स्पेशली प्रोसेस ऑटोमेशन में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बिकॉज मेरे साथ कल रात ये हुआ है कि आई हैड बीन सेलिंग टू अ इंटरनेशनल कस्टमर, एंड हमने जो उसको चैटबॉट्स कहा है, and he again said because he was focusing on a startup which is into real estate deal making, एंड वहां पे मेरी जब डिटेल में बात हुई तो ही वाज वेरी मच फॉर, हमने उसको जितने सैंपल्स भेजे थे उसने कहा ये बहुत बेसिक है, वी आर गोइंग वेरी अहेड विद इट। और हमने फिर उसको आगे से जिस तरह हर डील को ब्रेक डाउन करके हम जितनी उसको ऑटोमेशन कर सकते थे, हमने उसका मसला हल किया, हमें कॉन्ट्रैक्ट होपफुली आज या कल में अवार्ड हो जाएगा। प्रॉब्लम, कंपनी तब पैसे देती है जब उसका मसला हल हो जाता है। हम जो आपने प्रोसेस ऑटोमेशन की बात भी की, आई टेक अप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नाउअडेज एंड आई टेल देम कि आपको इतने पैसे बचेंगे अगर आप ये प्रोसेस ऑटोमेशन कर लेते हैं। आई गिव देम अ स्मॉल यू नो सॉर्ट ऑफ डिस्प्ले, एक डॉक्यूमेंट होता है उसको कहते हैं एज इज एंड टू बी। एज इज अभी इसका है और टू बी इतना, और इतने परसेंट आपका इम्पैक्ट आ जाएगा, जो कि आपको कुछ मेथडोलॉजीज है जिसके थ्रू आ जाता है, एआई नहीं करके देता। एआई ऐसे ही नहीं करके देता, जैसे मिसाल के तौर पे स्टार्टअप की फोरकास्टिंग है, तो आपका एक कैश डिस्काउंट फ्लो चार्ट बनता है। अब एआई चैट जीपीटी भी है, बहुत सारे टूल्स, वो आपको कभी नहीं बना देता, वो आपको खुद ही बनाना पड़ता है। तो वो ट्रेडिशनल चीजें हैं जो कि इंसान के पास ही हैं, और उससे भी वो सेल कर सकता है, ये कभी ऑटोमेट नहीं हो सकती। प्रोसेस ऑटोमेशन पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज रेडी हो रही हैं, एआई को इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम उन्हें ये समझा नहीं पा रहे कि हमने कहाँ करना है। इसमें तीन चीजें लैग करती हैं, हमें सेठ के पास जाके ये समझाने में मुश्किल हो रही है, उसकी इंडस्ट्री को पहले समझना है, फिर हमें एक एज इज एंड टू बी का डॉक्यूमेंट बनाना है, और फोरकास्टिंग करनी है उसको कितना फायदा होगा। और तीसरा, हमारे जो चैट बॉट डेवलपर्स हैं जो ऑटोमेशन की बिल्कुल बेसलाइन पाइथन डाल के ये समझते हैं कि हमने बड़ा चैट बॉट जबरदस्त बना लिया है, वो जब ऑटोमेशन में आते हैं तो फिर वो रियल लाइफ, क्योंकि वो तो मेक.com या डिफरेंट एरिया से उठाया होता है, उसकी कंटेक्चुअलाइजेशन नहीं हुई होती थ्रू ग्लोबल साउथ, पाकिस्तान के चैलेंजेस, बंदा नहीं आ रहा, वर्कर की दादी फौत हो रही है, दो थिंग्स जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो फिर उसकी कंटेक्चुअलाइजेशन में मसला हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेट वो खरीदता नहीं। तो आपको यूनिलीवर से या बड़े ब्रांड से नीचे फिर ऑटोमेशन उस तरह से मिलती नहीं है। एफिशिएंसी ऑब्वियसली इंप्रूव करती है जब आप कैमरास लगाते हैं, जब वो सारी चीजें करते हैं, बट आपको यू हैव टू सेल इट, एंड दैट एट दिस मोमेंट कैन बी सोल्ड ओनली ट्रेडिशनल वे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, जैसे मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ टू अ जनरल सेल, कॉस्ट कम करके, क्योंकि उसको लगता है यार ऑटोमेशन बहुत एक्सपेंसिव है, आप तो उसको छोटा छोटा डेमो करके आहिस्ता आहिस्ता इस पे लगाना है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उससे उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी, जिससे उसको पैसे बचेंगे, वो आपको एट एंड ऑफ द डे इट इज इकोनॉमिक्स। जब उसको पैसे बचेंगे तभी वो आपको, इसलिए वो लीड जनरेशन सेल्स पे बहुत ज्यादा आपको पैसे देने को तैयार है, प्रोसेस ऑटोमेशन पे नहीं देता, क्योंकि उसको पता नहीं चलता कि वो पैसे कितने बचा रहे हैं। तो दैट्स हाउ यू सॉर्ट इट आउट। Okay, sir, got it. Okay. Thank you. Okay, so Iman Majid wants to say something. She hand raised her. Iman, I just allowed your mic. Assalamu alaikum. Thank you for a wonderful and very precise talk. And thank you कि आपने ज़्यादा slot Q&A के लिए छोड़ा है. I have a question in three parts. Firstly, थोड़ा traditional side पे अगर हम जाएं, you started with how to build a narrative and strategic communication कितनी ज़रूरी है. हम बातों में तो ये सारी बात कर जाते हैं, and discussions में भी वो चीज़ें हो जाती हैं. But what could be a good working paper or a document that can be floated around the organization कि okay, this is our corporate communication Bible or something. That's part one. Part two, I wanted to ask कि जो हमारी marketing and sales है, जो कि typically तो होता है कि okay, the marketing for all population, open mass. But in pharma, it's a one-on-one marketing. It's not really कि बस हम pharma companies in Pakistan are not allowed to market openly. So it's a one-on-one communication directly with a healthcare professional.
तो उस सिनेरियो में एआई कैसे इम्प्लीमेंट होगा और उस सिलसिले में क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए मार्केटिंग एंड सेल्स टीम की. एंड थर्डली, हाउ feasible it is कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि चैट जीपीटी में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं फॉर एनालिसिस, अपने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं ताकि समरी निकल आए या इंसाइट्स निकल आए. सो आई हैव हर्ड कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैव मेड देयर ओन चैट जीपीटीज फॉर देयर ओन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ उनका डेटा अपलोड होता है. सो पाकिस्तानी कंपनीज के लिए हाउ feasible it is and how expensive it is. That's it. I hope I Okay, did. I'll start with the Eamon, I'll start with the third question because that is the most easiest one. जहाँ तक चैट जीपीटी फॉर द कस्टम नॉर्मल है, यस कस्टम जीपीटीज बन रहे हैं, बहुत तेजी से बन रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली डाटा आजकल ऑयल है एंड पीपल डोंट वांट टू यूज दिस डाटा. वो नहीं चाहते किसी के हाथ में जाए. इट्स वेरी चीप. आपको इट स्टार्ट्स फ्रॉम 25,000 रुपीज. आपका छोटा चैटबॉट चैट जीपीटी बन जाता है अपना इन हाउस, और फिर ज़्यादा आप उसको ट्रेन करते जाते हैं, 2-3 लाख तक चला जाता है. So it starts as low as 25,000 rupees. And अगर आप 10 YouTube वीडियो देख लें तो आप bit.com से खुद भी बना सकते हैं. सेकेंड, आपका क्वेश्चन आ गया फार्मा. फार्मा का प्रॉब्लम ये है कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो तो इजीली सेल हो जाते हैं, एसईओ भी हो जाती है, व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू भी हो जाता है, बट जब आप उसकी ड्रग्स पे आते हैं तो फिर यस डेफिनेटली ड्रैप आ जाते हैं वहाँ पे. उसका सोल्यूशन एक ही हो सकता है कि अगर आप उसके फॉर्मूलाज पे चले जाएं, तो उस पर आप फॉर्मूला सेल कर सकते हैं, उस पर ऐसे कोई पाबंदी नहीं है. जहां तक लीड जनरेशन है तो जाहिर है उसका डाटा जो है वो आपको मिल जाता है. वो आपको डिफरेंट टूल्स हैं जिसके थ्रू आप ईमेल्स उनके इकट्ठे कर सकते हैं और फिर 1-on-1 मार्केटिंग करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं अब भी यही करता हूँ. ऑब्वियसली क्योंकि जब आप वो लगाते हैं तो फिर आपकी इजी है, आपकी ऐसी हो जाती है, तो वो फिर आपकी सप्लीमेंट्स तो डायरेक्ट ऑर्डर आने पड़ते हैं. लेकिन फॉर फार्मा ऑब्वियसली इट्स डिफरेंट. वो वैसे ही है जैसे मैं सर्विसेज बेचता हूँ, चाहे मैं जीपीटीज बेचता हूँ या बाकी सारे, तो मुझे लीड का डाटा मिल जाता है, लेकिन आगे प्रोसेस पे मुझे खुद ही करना पड़ता है. तो ऑब्वियसली आप थोड़ी टेक्नोलॉजी से पार्शियल हेल्प उसमें ले सकती हैं. तीसरा आ गया अब आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट की बात. गवर्नमेंट ने इसको अब अडॉप्ट कर लिया है क्योंकि चीजें बड़ी तेजी से चेंज हो रही थी. तो पिछले 2 साल में 3-4 साल में फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स हमने जब ये जो आपका डिजिटल मीडिया यूनिट बनाया, जब फॉरेन डिप्लोमेसी को थ्रू स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कंट्रोल किया, तो गवर्नमेंट में बड़ी चीजें चेंज हुई हैं. हाँ, मल्टीनेशनल्स में नहीं हो रही कम्युनिकेशन को अभी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता और सेठ तो वैसे ही नहीं समझता. ये कल्चर चेंज है, इसको आते आते टाइम लगेगा. ये ज्यादा बेस करता है उस कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट और उसकी सपोर्ट टीम पे. अगर मालक चाहता है तो होता है, अगर बहुत भी टॉप कम्युनिकेशन वाला बैठा हो कंपनीज के अंदर, इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है. बट ऑब्वियसली फिर ऑटोमेशन को थोड़ा सा डाल के आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो जाती हैं, बट इट टेक्स टाइम. गवर्नमेंट लेवल पे हो गया है, इंडिविजुअल लेवल पे हो गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हो गया है, स्टेट कंपनीज में जाहिर है चेंज सबसे एंड पे आती है. डॉक्यूमेंट इसका इजीली बन सकता है, पर डॉक्यूमेंट्स के फायदे तब तक नहीं होते जब तक वो प्रैक्टिस में चेंज ना हो. और प्रैक्टिस में जाहिर है आपके पास जैपनीज एग्जांपल है, वो बच्चे से बंदे को ट्रेन करना शुरू करते हैं तो बॉम्बे तक वो ट्रेन हो जाता है. हमारे यहाँ ऑब्वियसली प्रॉब्लम नीचे से स्टार्ट होता है. Okay, so we have a question in the chat box. Hamza. He's saying, as you mentioned that frequently you are approached for making YouTube channel. I want to make a YouTube channel. How do I decide what niche do I choose? ओके हमजा, इसके अंदर बेसिकली देयर आर वेरियस ट्रेंडिंग टॉपिक्स. इसके अंदर इम्पोर्टेंट अगेन फिर ये आपको डिसाइड करना है. देखें, आपको यूट्यूब बनाना आसान है, उसकी ट्रेंडिंग मुश्किल काम है. तो आपको आई थिंक वो टॉपिक लेना चाहिए जो कि आपको पसंद है, ताकि जो है वो आप उसको उसको जो आपको मे बी 500 वीडियोस बनानी पड़ेगी जबकि एक वायरल होगी, और मे बी तब भी ना हो बिकॉज यूट्यूब पे भी सैचुरेशन बहुत ज्यादा आ रही है. फेसलेस यूट्यूब चैनल्स का मैंने जिक्र किया क्योंकि वो कंटेंट पे खेलते हैं, क्योंकि मैं एआई को उस तरह से एक्सप्लेन कर रहा था. इफ यू आस्क मी तो यूट्यूब का ट्रेंड इज गॉन एज वेल. इट इज अ गुड मीडियम फॉर एजुकेशन नाउ, बट एज फार एज सेल्स इज कंसर्न ट्रैफिक जनरेट कर देता है, बट आई थिंक उससे ज्यादा फैक्टर बहुत सारे टूल्स रह गए हैं. आपके पास दो ऑप्शन है,
एक ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स को पकड़ लें, बट अगेन सेचुरेशन इतनी है कि आप पता नहीं वायरल होंगे ना। और अगेन दूसरा ये जो आपको पसंद है वो करें, वो यूनिक टैलेंट होगा, बट स्टिल कंपटीशन इज वेरी स्टिफ इन यूट्यूब. There are now other mediums for that. I mentioned that because obviously people make money through that faceless channel, and that's where AI comes in. Okay, so guys, any other question? You can hand raise or as well as your just write your question in the chat box. I just want to add one last thing. As Okay, far as yeah, sure. YouTube channel is based out in Pakistan, there are major issues as far as उसका जो उसको जो आपको जो पैसे आते हैं, the rate per minute is very low. It is the lowest in the region, and US में obviously it's more, but वो भी rates काफी decline कर रहे हैं. So I don't see that ये जो आपको कुछ real orders नजर आते हैं, they are a part of they are 3, 4, 5 people out of maybe thousands. Okay, guys, any other question? You can just simply raise your hand or just write your question in the chat box. Sad, we will wait for like 2 to 3 minutes, then we can like conclude this session if no one has any question. Thank you so much, Shadia, for the comment. Sultan, if we don't have any more questions, so you can conclude the session. Okay, thank you so much all for being here today. We hope this session give you fresh ideas, confidence, and to express yourself. Also, you all have seen how to you guys can explore the AI tools as well for your personal as well as professional growth and your brands as well. A big thank you to Mr. Saad Athar for sharing his time, insights, and expertise with us. We truly appreciate your very valuable contribution. Let's see you in the next Skill of the Month session, guys. Have a great evening. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much once again.